Okay, so BNF basically is actually the representation of the letters or digits or the words. Now just have a look of it. If there is a digit that can be used in any expression, this vertical line is actually representing OR. So when we are storing digit in any variable, then it says 0 or 1 or 2 or 3 or 4, 5, 6, 7, 8, 9. It can be any number starting from 0 to 9. Then if there is any uppercase letter, then it says starting from A till Z, we have to have an option of having any letter with OR in the middle. So that's uppercase. Then lowercase letters, they also start from A to Z with OR. So any letter starting from A to Z can be used in the identifier. Now comes the identifier. So an identifier will have either, suppose if I write here a word that would be defined as a letter and then or letter then or and then word. Why have I used word here? Do you have any idea in this case? I have just explained it to you. Asad, can you tell me, No, beta, what ma'am. is it? Why haven't I used or here and why have I used a word here? नहीं पता मैम. बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफायर है, उस आइडेंटिफायर के अंदर सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनी आइडेंटिफायर विद दिस letter or letter. It means for this letter I can use A. ये मैं वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, ठीक है. मैंने लिखा नेम का N और साथ में लिख दिया A. ईदर दिस लेटर और दिस लेटर, ये दोनों लेटर्स आ गए. आई कैन नॉट हैव M और E. Why? Because it doesn't allow me to have more letters in it. So BNF has actually changed this identification in a way: letter, then or, then I can use letter और फिर मैंने लिख दिया आइडेंटिफायर. नाउ अगर हम इसको देखें तो फर्स्ट लेटर की जगह आई हैव रिटन नेम, देन सेकंड लेटर की जगह मैंने लिखा A, एंड आइडेंटिफायर बेसिकली इटसेल्फ is defined as this. तो अब ये क्या हो गया, N इस लेटर की जगह आया, A सेकंड लेटर की जगह आया और थर्ड लेटर is actually an identifier. An identifier is a combination of letter. So यहाँ पे मैं क्या करूंगी, M लिख सकती हूँ मैं, और अब मैं E का भी परमिशन है. Now are you clear about it? Yes, ma'am. Or if I want to use any digit, then I can have this as well, because now there is another further recommendation of it as or identifier then I can use a digit as well. So now you get an idea कि अगर मैं लिखती हूँ name 1, so now it gives permission for the variable naming convention कि name 1 is acceptable. But if I write here one name, is it possible for it?
Will it Nope. generate a syntax error? Because an identifier should always start with a letter, and I have started with it with a number, so it won't allow this variable naming convention. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर हो गया ना? जी जी मैम क्लियर है. ये जरा जैनब आ जाए. जैनब, अभी आवाज आ रही है आपको? यस हाँ जी मिस, अब आ रही है. ठीक है. जैनब, अभी हम लोग वही कर रहे थे, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की एक अप्रोच हमने की थी सिंटेक्स डायग्राम के थ्रू, एंड नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड बीएनएफ, दैट इज बेकर्स नॉर फॉर्म. बीएनएफ के अंदर हमने ये किया था कि अगर के कोई भी आइडेंटिफायर का नाम है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर, और दिस वर्टिकल लाइन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग और, सो वी कैन, हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया बेटा. So this letter will not accept 1 at the first place. It would generate an error. ठीक है. और अगर मैं ये 1 हटा देती हूँ, now will it generate an error? Because first place में मैंने m एंटर किया. सही है ना? जी और फिर उसके बाद देखो और लेटर. सो आई हैव रिटन a. It would be acceptable. अगर के मैं यहाँ सिर्फ लेटर लेटर करूंगी तो आई वुड हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ लेटर एंड लेटर एंड लेटर. So instead of that, I would be using identifier. Why? Because identifier would allow me to enter multiple letters in it. Why? Because an identifier is actually a combination of letter, letter and identifier. So now in this case, by using just identifier, I would have a permission to have more than 2 letters while naming the variable. And along this, I have got the permission to have digits as well. I hope it's clear now, because Asad is clear about this point. आगे चले. जी मिस. ओके, फ्रंट एंड एनालिसिस हो गया. फ्रंट एंड एनालिसिस के अंदर हमने इंटरमीडिएट कोड कर लिया, हमने सिंटेक्स एरर देख लिया. वी आल्सो हैव सीन if there is any variable used, then the syntax error would be generated, and how, what is the procedure of generating the intermediate code for that particular variable. Now move to the back end synthesis stage. For that back end synthesis stage, this is actually based on the front end. अब फ्रंट एंड के अंदर हमारे पास क्या है? सपोज फ्रंट एंड एनालिसिस हो गया, बट इफ फ्रंट एंड एनालिसिस के बाद अगर के नो एरर इज डन, एक सिचुएशन है हमारे पास नो एरर, और दूसरी सिचुएशन में हमारे पास है एरर. अगर की एरर नहीं है तो वो आ जाएगा बैक एंड सिंथेसिस स्टेज के अंदर. और अगर के फ्रंट एंड के बाद अगर की कोई एरर है, वो सिंटेक्स एरर भी हो सकता है, लॉजिकल एरर एट टाइम्स नहीं आइडेंटिफाई हो पाता, वो बिल्कुल एट टाइम्स जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, सपोज लॉजिकल एरर होता है प्लस की जगह आपने माइनस कर दिया या मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, तो वो फिर एट टाइम्स आपको एग्जीक्यूशन के बाद पता लगता है. सो इन दिस केस अगर की कोई सिंटेक्स एरर है तो वो फिर क्या करता है, आपको वो बैक एंड स्टेज के ऊपर जाता ही नहीं है, वहीं पर ही स्टक हो जाता है फॉर रिजॉल्विंग द एरर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमारे पास हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके अंदर हमारे पास एरर हो. ठीक है, इट्स एरर फ्री नाउ. अब फर्दर हमने क्या करना है कि हम कोई भी एक्सप्रेशन है, अब हम उसको इवेलुएट करते हैं, बिकॉज हमने वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन देख लिया, हमारे पास टोकन्स बन गए, अगर के कोई वेरिएबल जनरेट हुआ है, सिंबल टेबल भी बन गए, सिंबल टेबल बनने के बाद वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन भी चेक हो गई. जब सब कुछ चेक हो गया,
इनपुट आउटपुट के लिए वो रेडी स्टेट और वेटिंग स्टेट पे चला गया। अब हमने देखना ये है कि जस्ट इन केस इफ देयर इज एनी स्टेटमेंट इन विच कैलकुलेशन नीडेड, तो वो वाली जो एक्सप्रेशन है वो कैसे इवेल्युएट होती है, उसको कैसे ये रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू हैव अ रिवर्स पॉलिश notation. What do we call it? Reverse polish notation, or you can call that RPN. अब ये RPN है क्या और हमें करना क्या है इसके अंदर? जिस तरह हमने पार्स टेबल बनाया था, पार्स ट्री बनाया था बेसिकली, उसी तरह से हम इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या करते हैं कि इवेल्युएट करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी हम इसको मैनुअली करते हैं। मैनुअली करने के लिए हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हम जितने भी लेटर्स, हमें कोई काम है, 1 मिनट बेटा। हाँ, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी हैव गॉट वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, बिकॉज किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन होना है, वो ऑपरेटर्स की बेस की और उसकी बेस पे और उसकी प्रायोरिटी के ऊपर रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई ये वाली एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको यूज करते हैं वेरिएबल के जो ऑपरेटर्स हैं उनकी प्रेफरेंस के ऊपर। यहाँ पे प्रेफरेंस प्लस की है या मल्टीप्लाई की है? मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई की। तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर फोकस करेगा एंड इट एक्चुअली सेपरेट्स द ऑपरेटर फ्रॉम द वेरिएबल्स। एंड इसको क्या करेगा कि it will merge the variables and remove the operator and put it in the end. It means कि ये इसको basically हम इसको इनफिक्सिंग कर रहे हैं, ये टर्म यूज हो रही है इसके लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। ये इसका अभी भी इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, बिकॉज अभी हमने इसको फर्दर और फॉर्म्स के अंदर इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास बी सी फर्स्ट एक्सप्रेशन तो हो गया, उसके बाद हमारे पास प्लस साइन की प्रेफरेंस है। तो फिर क्या होगा कि प्लस साइन वुड कम अगेन इन द एंड एंड ऑल द ऑपरेटर्स वुड बी इन द सीक्वेंस ए बी सी। सो दिस इज बेसिकली द पोस्ट फिक्स नोटेशन, यानी जितने भी ऑपरेटर्स हैं दे हैव कम इन द एंड लेटर देन द वेरिएबल्स। आर यू क्लियर अबाउट इट? मैम व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, ये मतलब कर क्यों रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्दर हमने इस एक्सपेक्शन को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन के लिए वो इसको किस तरीके से अरेंज करता है कि उसने ऑपरेटर्स को और वेरिएबल्स जो होते हैं उनके ऊपर इसने एक्शन परफॉर्म करना है। इसका बेसिक पर्पस जो होता है वो क्या होता है कि मेमोरी में ऑप्टिमाइजेशन, यानी मेमोरी और रजिस्टर्स का आपस में कोऑर्डिनेशन करना। जब रजिस्टर्स के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू एडजस्ट हो जाएंगी और मेमोरी के अंदर जो एड्रेसेस हैं वहां पर वो एफिशिएंटली उसको फिक्स करेगा। ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ये ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे। फिर क्या होगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो अपने अपने वैल्यूज को पिक करके एंड देन इट वुड परफॉर्म द टास्क। और वो जो टेम्प वेरिएबल बनता है उस टेम्प वेरिएबल के थ्रू ये क्या करता है, सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके और इन अ जिफी ये परफॉर्म कर देता है, उस इवैल्यूएशन को, उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर देता है। So this is basically for the memory optimization with the coordination of registers and memory. समझ आई? यस मैम। So this actually tries its level best to have the efficient use of memory by actually positioning the variables and the operators. Suppose यहाँ पे देखो हमारे पास, एक मिनट,
एक और एक्सप्रेशन है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अब करना क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन को आरपीएन में कन्वर्ट करना है। x2 इंटू y3 just wait for a while, it's I think multiply plus 6 और divide। अच्छा जी, अब ये कुछ वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स इस तरीके से हुए हैं। हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है कि ये इजी टू यूज हो जाए मेमोरी के लिए। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, हमने इसके अंदर एज पर द क्वेश्चन इट सेज कि यहाँ पे द प्रोसेस, इसके अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले क्या होना बाकी है बताओ? ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी तो है, तो ये हमारे पास ब्रैकेट आ गया कि x, ये इस वक्त किस फॉर्म में लिखा हुआ है? आरपीएन में। आरपीएन में लिखा हुआ है। अब आरपीएन को अगर हमारे पास है, हम इसको अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक्चुअल जो एक्सप्रेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी? हाउ कैन वी इवेल्युएट इट? जब भी बॉडमास रूल होता है, बॉडमास के अंदर ब्रैकेट पहले ओपन होता है। ठीक है, अगर कि ब्रैकेट पहले हम ऐसे काम करते हैं, इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ आरपीएन। अब देखो, a प्लस बी वुड बी सॉल्व फर्स्ट, तो ये क्या करेगा, ए बी एंड देन प्लस साइन, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई की प्रेफरेंस आती है, तो देन सी एंड मल्टीप्लाई, सो दैट एक्चुअली विल सॉल्व द ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ आरपीएन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अगर कि हम इस फॉर्म को माइंड में रखें तो हम इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कि हमारे पास क्या है, ब्रैकेट्स के बाद का जो ऑपरेटर है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि हियर इज द यूज ऑफ ब्रैकेट्स। सो अब उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमारे पास x2 इंटू यानी मल्टीप्लाई, सो इट मींस दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ अ ब्रैकेट। सो हमने इसको इलेबरेट किया, x into 2 bracket open and close, so it has been solved now. Again y3 into yani multiply, it means there are further operators along with the constant value, so we have got an idea that we would be having another bracket used here for y multiplied by 3, so again there is another bracket that has been solved here, but now there is a plus sign. So this plus sign would definitely be coming in the middle because bracket open, divide, multiply, addition and subtraction. So इसकी lower precedence है इसके बाद, तो हमने इसको क्या कर दिया, प्लस, ये दोनों के दरमियान आ गया, और एंड में फिर हमारे पास क्या होगा, डिविजन वाली प्रेफरेंस, so that would be coming before 6. So that is actually the format that was initially be there before doing the RPN. तो हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एस्पेक्ट से आरपीएन को सॉल्व करके देख लिया। ज़ैनब, आर यू गेटिंग इट? जी मिस। सो जो हमारे पास बॉडमास होगा, कीपिंग दैट इन माइंड, वी कैन हैव द प्रेसिडेंस रूल ऑफ द ऑपरेटर्स एंड देन ब्रेक द आरपीएन और फॉर्म द आरपीएन, सो दैट वुड फर्दर बी डेल्ट इन द केस ऑफ पार्स ट्री। सपोज एक स्ट्रक्चर डायग्राम आपके पास हैगा, ये वाला, इसको हम किस तरीके से आरपीएन में सॉल्व करेंगे? कैन यू गेट एन आइडिया? मैम पहले पार्स ट्री से एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर अगर वो एक्सप्रेशन होगा तो उसको इनफिक्स आरपीएन में लेके जाएंगे शायद। Exactly. हमारे पास एक्सप्रेशन होना जरूरी है, अगर कि एक्सप्रेशन नहीं होगी तो हमारे पास एरर का चांस है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमने बना ली, और एक्सप्रेशन बनाने के बाद देन वी कैन हैव इट। और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस वैल्यू किस तरह होगी, एंड में कौन सा ऑपरेटर आएगा? जिसकी प्रेफरेंस सबसे लो होगी वो बिल्कुल एंड में आएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड।
ठीक है। यस मैम, ठीक है। और अगर कि ब्रैकेट होगा तो वहां वेरी करेगा, अगर ब्रैकेट नहीं होगा देन इट वुड बी इन द सेम वे। अच्छा, एक स्टैक, अच्छा तुम्हें स्टैक का कॉन्सेप्ट पता है? नहीं मैम, इतना खास आइडिया नहीं है। स्टैक बेसिकली क्या करता है, अगर कि हम एक बुक का पाइल का स्टैक बनाते हैं, ये स्टैक बनाया हमने, और स्टैक के अंदर ये इस तरह से स्टैक बना रहे हैं हम, तो अगर कि मैंने ये 3 बुक्स का स्टैक बनाया है, तो सबसे पहले मैं कौन सी बुक को पिक करना होगा मुझे? लास्ट में ब्लू लाइन आई है ना, ब्लू बुक इज केप्ट ऑन इन द लास्ट, लेकिन अगर मैं पिक करूंगी तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? ब्लू बुक को पिक करना होगा। तो एक टर्म होती है, 2 टर्म्स होती हैं, एक होती है लीफो और एक होती है फीफो। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दीज 2 टर्म्स? मैम वो लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन एग्जैक्ट, फर्स्ट आउट। हाँ, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। स्टैक वर्क्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, हमारे पास क्या है कि इफ यू हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, तो उस सिचुएशन के अंदर ये सारी हम एक्सप्रेशन की बेस पे बात कर रहे हैं, तो दैट एक्सप्रेशन वुड बी सॉल्व्ड इन दैट केस कि वो एक स्टैक की फॉर्म में वो सॉल्व होगा, बिकॉज स्टैक में क्या है, हमारे पास मल्टीपल चीज है, यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं अलॉन्ग विद द मल्टीपल ऑपरेटर्स। तो वो चीज हमारे पास किस तरीके से कंट्रोल होगी, दैट वी कैन सी नाउ। इसका हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिथम होता है जिसको कहते हैं शंट यार्ड एल्गोरिथम। इट एक्चुअली फॉलोज दैट शंट यार्ड एल्गोरिथम। शंट यार्ड एल्गोरिथम ओनली वर्क्स विद द स्टैक्स। ठीक है, अब स्टैक के अंदर हमारे पास किस तरीके से होगा, हमने यहाँ देखना है, वी हैव एन एक्सप्रेशन a plus b into c। ये एक एक्सप्रेशन है, दो इट डज नॉट हैव सो मेनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर्स और ब्रैकेट्स, बट स्टिल if we have got any expression in which we have to solve the stack line operator वाला सीन, तो हम वो अब हमने देखना है कि वो बैक एंड पे किस तरीके से सॉल्व होगा। हमारे पास तो एक रिजल्ट फॉर्म होके आ जाएगा, बट बैक एंड पे किस तरीके से होगा, दैट एल्गोरिथम वुड बी डन बाय एक्सप्लोरिंग दिस एक्सप्रेशन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज शंट यार्ड एल्गोरिथम। अब शंट यार्ड एल्गोरिथम कैसे करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए जरा।